Now I am going to explain exercise 13.2 of class 11th. Name of the chapter is limits and derivative. Now question number 1 we have, find the derivative of x square minus 2 at x is equals to 10. Now if we have to find the derivative of this question, we just use a formula, learn a formula. X to the power n is equal to n, x to the power n minus 1. So using this formula, this is x square which is equal to 2x to the power 2 minus 1 minus 2. There is no x, so it becomes 0. Okay, so it becomes 2x only. Now we have to find the value at x is equal to 10. That means we have to put the value of x is equal to 10 in our required equation. So our answer is 2 into 10 which is equals to 20. Now question number 1 is finished. Now the second question, find the derivative of x at x is equal to 1. That means our question is x. We have to find the derivative of x. That means we have the power of x is equal to 1. So use the formula nx n minus 1 which is equal to 1 x 1 minus 1. That means 1 x to the power 0 which is equal to 1 into 1 which is equal to 1. Now there is no x. So at x is equal to 1, there is nothing. So we have its derivative is 1. Now we have to find the derivative of 99x at x is equals to 100. Now our function is 99x. That means power of x is 1. Okay. So 99 into 1 into x 1 minus 1. So it becomes 99 into 1 x to the power 0. Now x to the power 0 is equals to 1. That means its answer is 99. Now we have to find its derivative at x is equal to 100. But in our answer there is no x. So our answer is 99. Okay. Now we have the function this and we have to find the derivative. Now अगर हम इसको अलग से सीखें बेटा, ऐसे देखो ये x क्यूब हो गया, ये 27 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं एन एक्स एन माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है 3. दैट मीन्स 3x 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर. ये आंसर हो गया. ठीक है ना. यहाँ इस 27 में x है ही नहीं, तो जब किसी भी गिनती में अगर x नहीं होता तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाता है 0. सो इट्स डेरिवेटिव बिकम्स 3x स्क्वायर ओनली. Now we have to find the derivative of this function. Now multiply it. X square minus x minus 2x plus 2. It becomes x square minus 3x plus 2. Now you can do it directly, or I am just making a table for you so that you can easily understand how it goes. Now it's n big 2. Value of n, listen, formula is nx n minus 1. Value of n is 2, that is 2x 2 minus 1. Here minus 3 आपका constant value है, आप ऐसे ही रखोगे. यहाँ x के ऊपर वैल्यू कितनी है 1, तो into 1 x to the power 1 minus 1. Here there is no x, so it becomes value becomes 0. Okay, ultimately its value is 2x. Its value is what? X to the power 0, that means minus 3. So our answer becomes 2x minus 3. Its value is 0. So this is the answer. Now we have to find the derivative of 1 upon x square. In this question, you can write 1 upon x square in this way, taking the exponent in the numerator. So now use the formula nx n minus 1, that is minus 2 x to the power minus 2 minus 1. That is minus 2 x to the power minus 3 which is equal to minus 2 upon x to the power 3. Whenever we have to find the derivative of any function which is written in the form of a fraction, that means if we have to divide, okay, then listen, its formula is in this way, u upon v. For example, we have a function, then its formula is v square. Now v derivative of u minus u derivative of v. This is the format. Okay. Now we use this format, x minus 1 whole square. Clear?
Now x minus 1 here, derivative of x plus 1 minus x plus 1 derivative of x minus 1. Okay, that means we have to find the derivative of x plus 1, we have to find the derivative of x minus 1, and after that we have to put their values. Now what is the derivative of x plus 1? This is the constant, it becomes 0, and derivative of x is 1. Okay, similarly for x minus 1, its derivative becomes 1. I am going to substitute the values, that is x minus 1 into 1 minus x plus 1 into 1 upon x minus 1 whole square. Easy. Now we elaborate it. X minus 1 minus x minus 1 over x minus 1 whole square. X and x cancel. That is minus 2 over x minus 1 whole square. Now in this question, the question is given in this form and we have to prove this. Okay. That means f dash 1. F dash means, that means we have to find the derivative. That means f dash x. We have to find the derivative of this function. अब अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 100 x to the power 100 minus 1 यानी 99 upon 100. Clear? Similarly 99 x to the power 98 upon 99. Easy. So it goes like this, 2x upon 2, and then here for the x it is 1 and it is 0. This is f dash x. Now when we solve, we get x plus x plus x plus dot 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 plus 1. Okay. So if we put value of x as 1, so f dash 1 is equal to 1 plus 1 plus 1 up to plus 1. So what does इसका value कितने होगा? ये 100 से start था. Okay. तो ये 99th वाला 1 है. 99th. X to the power 99. 98. Okay. And in the last, this is x to the power 1. That means, and after that we also have to sum 1. That means up to here, its value is 99 plus 1, which is equal to what? 100. Okay. Now, if we have to find f dash 0, all these become 0 and we have only what? 1. So, f dash 1 is equal to 100 and f dash 0 is 1. So, if we multiply f dash 0 with 100, we again get 100. So, ultimately it is proved f dash 1 is equal to 100 f dash 0. समझ में आया? f dash 1 देखो 100 है, मतलब ये f dash 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100. और ये 100 यहाँ साथ में लिखा है और f dash 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1. तो 100 1 100 ही तो हुआ, तो ये प्रूफ हो गया. Now this is the question and we have to find its derivative. Derivative means we have to find its f dash x. Now I am going to differentiate n x n minus 1. Here a n minus 1 x n minus 2. कैसे होता है देखो बेटा, a x n minus 1. अगर हम a हटा दें तो कांस्टेंट है, तो n minus 1 यहाँ आ गया, x to the power n minus 1 minus 1 यानी n minus 1 और x के पावर n minus 2. क्लियर है ये? यानी एक एक और घटता जाएगा. तो ये लास्ट में यहाँ पर देखो a के ऊपर n minus 1 बचा और x के ऊपर 1 है. x के ऊपर 1 का मतलब 1 और x to the power 1 minus 1 यानी 0 हो गया. यानी लास्ट में मेरा यहाँ पे क्या बचेगा? a to the power n minus 1. लेकिन ये जो a n है यहाँ पर कोई भी x नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0. ठीक है. तो इस तरीके से यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा. n x to the power n minus 1 a n minus 1 into x to the power n minus 2 plus dot 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 a n minus 1. वीडियो बंद करो.
मैंने भी आपको ये इस तरह के क्वेश्चन सिखाए थे, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सिखाने जा रहे हैं। हम दोनों मेथड से यहाँ पर करेंगे, एक के बाद एक। देखिएगा, पहले हमने मान लीजिए मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया इस तरीके से, आपका ये हो गया। तो इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, और ये 0 हो गया। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस ए प्लस बी। क्लियर। अब हम जो सेकेंड मेथड बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए अगर फॉर्मेट है u इंटू वी, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है ये, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये लगाते हैं। तो यानी x माइनस ए डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस बी प्लस x माइनस बी डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस ए। ओके, सो यहां पर हो जाएगा x माइनस ए। अगर हम x माइनस बी का डिफरेंशिएशन करें, देखो बेटा x माइनस बी, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, b में तो कोई x है ही नहीं तो वो 0 हो गया, यानी x माइनस 1 a इंटू 1 प्लस इसी तरीके से x माइनस बी हो गया, और ये इसका डिफरेंशिएशन 1, ये मल्टीप्लाई हो गया x माइनस ए प्लस x माइनस बी, यानी 2x माइनस ए माइनस बी। देखो सेम आ गया, है ना। तो ये बिना मल्टीप्लाई करे भी हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चंस को भी हम दो तरह से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए आप कैसे कर सकते हैं। आपने लिखा ax स्क्वायर प्लस बी, ऊपर स्क्वायर बना है तो आपने इसको 2 बार लिख लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a स्क्वायर x4 ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एक्स 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 4 वाला डिफ्रेंशिएट होगा, ए स्क्वायर वाला नहीं होगा। तो 4a स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4ab एक्स, और ये 0, ये आ गया। ये आपका पहला मेथड, ठीक है। अब हम इसके दूसरे मेथड पे चल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है ना। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और इसी तरीके से फिर रिपीट हो जाएगा, है ना। तो एक तो इस तरह से आप कर सकते हो, और एक मेथड और है जो मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम क्या करें। इस पूरे को अगर मान लो हम टी मान लेते हैं, टी, ये हम ये जो डायरेक्ट 2 है वो यहां लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और 2 माइनस 1, ठीक। अब ये पूरे वाला कर लिया डिफरेंशिएट, अब इसके अंदर वाला डिफरेंशिएट कर दो। तो अंदर वाला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका हो गया 2ax, केवल b में तो कुछ है ही नहीं, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो गया 2ax। अगर आपको समझ में आए तो आप फॉलो करिएगा, ना समझ में आए तो आप उसी तरह करिएगा। अब ये 2ax और ये 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 4ax, और यहां पर हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और 2 में से 1 गया 1 हो गया। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab एक्स, देखिए आपका फिर से वही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2-3 मेथड चाहे जिससे भी इसको कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस बी यूजिंग द डिविजन मेथड। सो x माइनस बी होल स्क्वायर, और यहां पर आपने x माइनस बी लिखा, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए माइनस, फिर x माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ x माइनस बी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x माइनस बी तो ये हो गया। अब x माइनस ए का डेरिवेटिव आप अगर निकालो तो यहाँ पर तो x है नहीं, इसका तो आपका 0 हो गया, और ये x का क्या हो गया 1, यानी सिंपल किससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से। इसी तरीके से यहाँ पर भी x माइनस ए और ये हो गया 1, ठीक है ना। और ये हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर। x माइनस बी, ये माइनस लगा है, ध्यान रखना बेटा, तो माइनस एक्स प्लस ए अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर, ये x x कैंसिल हो गया, a माइनस बी अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। Now we have this question in the exercise and we have to find the derivative of this. So again
डिनोमिनेटर x माइनस ए का होल स्क्वायर. नाउ हेयर x माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ xn माइनस ए एन माइनस xn माइनस ए एन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए. तो हमें इसका और इसका डेरिवेटिव निकालना है. तो पहले हम इधर डेरिवेटिव निकाल लें. अगर x माइनस ए का निकालना है तो सिर्फ 1 आएगा. ठीक है. अब अगर हमें एक्स एन माइनस ए एन का निकालना है तो इसमें तो x है नहीं, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई 0. अब बचा x के पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया एन एक्स एन माइनस 1. अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने वैल्यूज पुट कर दी. x माइनस ए इंटू एन एक्स एन माइनस 1. यहाँ पर एक्स एन माइनस ए एन और इसके वैल्यू 1. नीचे हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो. एन एक्स यहाँ 1 है, एक्स एन माइनस 1 माइनस ए एन एक्स एन माइनस 1 माइनस एक्स एन प्लस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. तो ये +1 है, ये -1 0 हो गया है ना. तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा आंसर. इस क्वेश्चन को आगे बहुत ध्यान से सॉल्व करना, नहीं तो आप गलत कर दोगे पावर्स में. तो देखो ये कट के हो जाएगा एन एक्स एन. ठीक है. यहां पर आपका यही रहेगा ए एन एक्स एन माइनस 1. यहां पर माइनस एक्स एन, ये प्लस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. यहाँ पर कोई ऐसा, यहाँ पर अगर हम एक्स एन निकालते हैं तो अपॉन एक्स होगा, रिलेशनशिप बन देगा. तो इस तरह ही हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव. दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, सो इट्स डेरिवेटिव इज डायरेक्टली 2. तो याद रखो कोई भी गिनती है, अगर मान लो ए एक्स करके कुछ भी है, कुछ भी गिनती, अगर केवल एक्स है तो केवल वो गिनती का कोफिशिएंट ही डेरिवेटिव हो जाएगा. Now we have this question, we can also solve this equation by multiplying it, but I am using the formula of u dot v. Okay, so I will take first function, this one, 5x cube plus 3x minus 1 into derivative of x minus 1. We have to put a sign of addition. Then x minus 1 derivative of 5x cube plus 3x minus 1. Now we have to find the derivative, which is 5x cube plus 3x minus 1. Derivative of x minus 1, x that is 1, so only 1 is there. Okay. Now here in this case, x minus 1, 5x cube, that means 15x square. 5 3s are 15. Clear? Now here 3x, that is only 3, and 1, it doesn't have x, it is 0. Now after multiplying, you will get the answer -1 प्लस, सब मल्टीप्लाई करिए, 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3. अब इसको पूरा सॉल्व कर लो. देखो ये भी x क्यूब है, ये भी x क्यूब है. दैट मीन्स 20x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x एंड माइनस 4. इट कांट बी, इसको काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ ये 15 फंस रहा है, ना 2 से ना 3 से ना 4 से. यही आंसर है. Now in this question, this is x to the power -3. We can either take it in the denominator and we can also solve it by u1. लेकिन हम उसको कहेंगे डिनोमिनेटर कर लो तो कोई दिक्कत जल्दी नहीं होगी. ये एक्स क्यूब हो गया, ठीक है ना. तो डिनोमिनेटर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा x to the power क्यूब यानी 6 हो गया. यहाँ पर x3 डिफरेंशिएशन ऑफ 5 प्लस 3x माइनस 5 प्लस 3x डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब. क्लियर है. जब तुम्हें अगर इसका डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो तो वो अलग से लिख के सॉल्व कर लिया करो. जैसे मान लो 5 प्लस 3x का निकालना है, इसमें तो x है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 3 होगा. अगर ये एक्स क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन 3x 3 माइनस 2 1 यानी 2. अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पर आंसर 3 है, माइनस हो गया 5 प्लस 3x, ये 3x स्क्वायर हो गया
ये हो गया x टू द पावर 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x क्यूब माइनस 15x² माइनस 9x³ और ये x टू द पावर 6। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगी तुम, x² सब में आ रहा है। तो जब x² सब में आ रहा है हमने इसको कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x² कॉमन है तो 3x माइनस 15 माइनस 9x टू द पावर x टू द पावर 6। तो ये आपका कैंसिल हो गया तो x टू द पावर 3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन बट हियर इट इज -9, ये अंदर है ब्रैकेट के। तो यहाँ पर एक आपका ये है और एक पूरा ये है, तो आपको यूवी वाले से ही काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव x टू द 5 डिफरेंशिएशन ऑफ 3 माइनस 6 x टू द पावर -9 प्लस 3 माइनस 6 x टू द पावर -9 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5। तो इसका डिफरेंशिएशन हम पहले अलग से निकाल के आपको दिखाते हैं। 3 माइनस 6 x टू द पावर -9, यहाँ देखो बेटा x नहीं है तो ये 0 हो गया। अगर हम इसको अलग से इलेबोरेट करें तो -6 के ऊपर x टू द पावर, या मान लो ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा -6 इंटू -9 x टू द पावर -9 -1, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 9 54 x टू द पावर -9। ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसके बाद हम सारी वैल्यूज आराम से रख देंगे। तो ये x टू द पावर 5 हो गया इंटू 54 x टू द पावर -10। अभी सेकेंड वाला सॉल्व करना है। प्लस 3 माइनस 6 x टू द पावर -9, ये हो जाएगा 5 x टू द पावर 4, ठीक है, क्योंकि x टू द पावर 5 था। अब हम इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 x टू द पावर -10 प्लस 1, यहां पर हो गया 15 x टू द पावर 4 माइनस 5 6 30 x टू द पावर -9 प्लस 4, 54 x टू द पावर -5 प्लस 15 x टू द पावर 4 minus 30 x to the power -5. This is also -5, this is also -5, and both have different signs. So we have to subtract, that is 4, 5 minus 3, 2, 24 x to the power -5 plus 15 x to the power 4. So this is our right answer. In this video, I am going to explain how to find the differentiation of any function using the first principle. Now, what is the formula? We have the formula fx plus h minus fx over h, where limit h tends to 0. Using this formula, we find the derivative of any function, and this is known as derivative from first principle. Okay. Now, we have the question for which we have to find the derivative using first principle. Now, limit h tends to 0, x plus h, that is cos x plus h minus cos x over h. Now, we have the formula cos a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b. We use this formula and we elaborate cos x plus h. So we have limit h tends to 0, cos x cos h minus sin x sin h minus cos x over h. Clear? So it becomes cos x cos h upon h, limit h tends to 0. Similarly, minus limit h tends to 0, sin x sin h upon h. Next one, minus limit h tends to 0, cos x upon h. That means in each case h becomes 0. Now we have some formulas of limit, I think, which you know. If limit h tends to 0, sin x or sin h upon h, its value is 1. But limit h tends to 0, cos
h is equal to 1 and limit h tends to 0, cos h upon h is equal to 0. Now if we see the case, here it is cos h over h. So its whole value becomes 0. And here this is sin h by h, it become 1. So we get minus sin x into 1. And here it is cos x and this is h. That means cos x over 0, its value becomes 0. So ultimately the derivative of cos x is minus sin x. So this is the basic funda. How will you find the derivative using first principle?